Welcome to the last segment of 7th chapter of your prose, Tea from Assam by Arup Kumar Datta. The first segment of this chapter took us to Goa, that is 400 kilometers south of Mumbai. Second part took us to Coorg, that is one of the most beautiful tourist place of Karnataka and even smallest district. And in the third part, we are moving to Assam, the northeast state of India. Here, Arup Kumar Datta tells us this conversation of two boys who are traveling by a train to Assam, Pranjal and Rajveer. Rajveer seems to be a native of Delhi and they both are classmates. And Pranjal is his friend who is born and brought up in a tea estate in Assam. They both are moving by a train to pass their summer vacation in Assam. When train halts at one place and they have the tea, then Rajveer, as per his knowledge, he has a very good knowledge about tea. He tells to Pranjal that over 80 crores cups of tea are drunk every day throughout the world. And he is also a lover of detective books. Then the train continues and enters there in Assam. And Rajveer was quite fascinated to see the largest concentration of plantations in the world. Then he tells Pranjal that I have two stories about the origination of tea. Then Pranjal is quite surprised and says, "Come on, tell me." And Rajveer says that one story is of Chinese emperor, the second one is of Indian. The Chinese emperor, he was very fond of boiling water, means he used to drink always the boiling water, and one day some twigs fell into that boiling water and the water's taste turned very delicious, and from there, in fact, those were the tea leaves, and from there the tea was being originated. And the second story is about, or the second legend is about one Buddhist ascetic, Buddhist monk, who his name was Bodhidharma, and during his meditations he fell asleep, sleepy you can say, and then he cut his eyelids to banish the sleep, and out of that the 10 tree plants grown up, and when those leaves were put into the water and drink, that banished the sleep. This is the second one. He also tells some facts about, Rajveer tells certain facts about the tea, that it was first drunk in China at about 2700 BC, before Christ. And in fact, chai and chini and tea, these words are from Chinese language. And in Europe, it came in around 16th century, and first it was being taken as a medicine, not as beverage. Then the train reached to Mariani Junction, and the parents of Pranjal came to receive them, and lastly they reached to the Dhekiabari tea garden, which is being managed by the Pranjal's father. When they were going there, in between, Rajveer says that this is the second flush or the sprouting period of tea, Mr. Barua, and this starts from May to July, and this yields the best tea of the year. Then Mr. Barua says that you have done your good homework and you are having a very good knowledge about the tea. Then with a great smile, Rajveer admits that one and says, yes, I have come here to learn more about tea, and especially this area. So this was a chapter. In fact, this chapter tells you about something related to Assam and about the origination of tea, especially for which it is being famous. You might have seen many shops in your city. Those people are selling the tea from Assam. On the name of Assam, once you talks about Assam, the three things comes up into your mind. The first one is the costly wood, which is being used in the furniture and for your roofing purpose. The second one is a crude oil, khanij tel, जिसको आप petroleum and other things which you call them. And the third one is the tea,
the best tea in the world is being produced in Assam. So these are the three things for which the Assam is famous. अभी मैं एक बार इसका हिंदी में आपको बता देता हूँ। हम अपने तीसरे खंड 7वें अध्याय के तीसरे खंड का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता का लिखा हुआ एक ये चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है। इसमें दो दोस्त होते हैं, प्रांजल और राजवीर। प्रांजल का ऐसा, पहले राजवीर के बारे में सुनते हैं। राजवीर ऐसा लगता है दिल्ली का एक छात्र है और ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजल का जन्म और पालन पोषण वहीं पे कहीं पे हुआ है। आप यूँ कहिए कि असम की एक चाय बागान के अंदर, और उसके पिताजी मिस्टर बरुआ, श्रीमान बरुआ, एक चाय बागान के मैनेजर हैं। तो ये दोनों जब दिल्ली से एक ट्रेन के द्वारा असम जा रहे हैं और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, ऐसा लगता है कि ये समर वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, और जब रास्ते में एक जगह जैसे ही ट्रेन रुकती है और वो चाय लेते हैं तो राजवीर शुरू हो जाता है, जो उसका नॉलेज है, उसका ज्ञान है चाय के बारे में, कि आपको पता है, प्रांजल को बोलता है कि पूरी दुनिया में हर दिन जो है लगभग 80 करोड़ चाय के प्याले पिए जाते हैं। और फिर वो जो है कुछ डिटेक्टिव बुक्स जो एक तरह से रहस्यमयी टाइप के टॉपिक्स पे होती हैं, वो भी पढ़ने का शौक़ था। फिर गाड़ी धीरे धीरे असम के चाय बागानों के अंदर एंटर करती है। असम के चाय बागान में जब गाड़ी घुसी तो वहाँ पे बड़े बड़े से पेड़ हैं और उनके नीचे कुछ अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई कुछ इमारतें भी हैं, और जिनसे बहुत तेज़ धुआं टाइप उनकी चिमनी से निकल रहा है। प्रांजल का जन्म और पालन पोषण वहीं पे किसी एक चाय बागान के वहाँ पर हुआ था, और ये दुनिया के सबसे बड़े चाय बागान के बड़े बड़े खंड यहाँ पर पाए जाते हैं असम के अंदर, और ये वहाँ का जो है मुख्य पेशों में जो है शामिल है। फिर राजवीर प्रांजल को बोलता है कि मैंने 2 कहानियाँ सुनी हैं, या मैं 2 कहानियाँ जानता हूँ कि किस तरह से चाय की उत्पत्ति हुई। पहली ये है कि चीन में एक राजा हुआ था और उसको उबला हुआ पानी पीने का शौक़ था। एक दिन जब उसका पानी उबल रहा था तो कुछ पत्तियाँ उस पानी में गिर गई और उससे काफ़ी स्वाद आ गया उस पानी में, या वो पानी काफ़ी स्वादिष्ट हो गया, और बाद में ये पता लगा कि ये चाय की पत्तियाँ हैं। दूसरा वो बोलता है कि एक भारतीय बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम बौद्धि धर्मा था। वो उसको अपनी तपस्या के दौरान नींद आ गई तो उसने अपनी पलकें काट करके फेंक दी कि मुझे नींद ना आए, और फिर उससे 10 कुछ प्लांट्स टाइप के उग गए, और उनको जो है जब पानी में डाला गया, पिया गया, तो उससे नींद गायब हो जाती थी। ऐसी मान्यता है, ऐसी जो है कहानियाँ प्रचलित हैं। चाय, चीनी, ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं, और चाय को पहली बार चीन में पिया गया लगभग 2700 ईसा पूर्वी के अंदर, और यूरोप के अंदर ये 16वीं शताब्दी में आई, और इसको पहले दवाई के रूप में लिया जाता था, और बाद में जो है ये एक पेय के रूप में, बेवरेज मीन्स एनी ड्रिंक अदर देन वाटर, इसको लिया जाता है। बाद में उनकी ट्रेन मरियानी जंक्शन पहुंचती है और वहां पर उसके पेरेंट्स आए हुए थे रिसीव करने के लिए प्रांजल के। फिर वो उसको लेके अपनी गाड़ी में ढेकियाबाड़ी जो टी गार्डन है या टी एस्टेट है उसकी तरफ लेके चल देते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि जो कच्चे टाइप का रोड था जिस पे केवल बजरी पड़ी हुई थी, उसमें पूरे के पूरे ट्रेलर मीन्स पूरी की पूरी ट्रॉली टाइप की वो लेकर के जो है ट्रैक्टर खींच करके उस लोड को वहाँ तक लेके जा रहे हैं। फिर बीच में ही राजवीर बोलता है उसके पिताजी को कि श्रीमान बरुआ, ये सेकंड जो फ्लश है, जो दूसरी कटाई है, वो चल रही है अभी या आ रही है, और ये मई से जुलाई तक का टाइम होता है इसका, और ये साल के अंदर सबसे अच्छी चाय जो है इसी टाइम पे प्रोड्यूस होती है।
तो मिस्टर बरुआ बोलते हैं, हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान है इसके बारे में और आप काफ़ी रुचि रखते हैं चाय के अंदर। तब राजवीर बोलता है कि हाँ, मैं जो है काफ़ी इस बारे में थोड़ा सा जानता हूँ और अब मैं इसमें और रुचि लेके यहाँ जो कुछ होगा मैं उसको सीखने की कोशिश करूँगा, शायद मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से चैप्टर हमें असम में लेके जाता है और वहाँ पे चाय, उसके ऊपर जो कुछ तथ्य हैं चाय के ऊपर, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालता है और किस तरह से जो है टी एस्टेट्स या गार्डन्स होते हैं, किस तरह से चाय पैदा की जाती है, या यूं कहिए कि चाय की उत्पत्ति के बारे में किस प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं, वो यहाँ पर थोड़ा बताया गया है और ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट की आपको एक झलक देता है चैप्टर। So I'll come on to the interpretational part in my next video.